I'm going to pronounce 6 blessings that the rain of blessing through the Holy Spirit comes to us. जल्दी से मैं 6 आशीष बताऊंगा जो कि पवित्र आत्मा की बारिश हम पर लेकर आती है। Ezekiel 34:26. यहेजकेल 34:26। The Lord says, I will send down showers of blessing. प्रभु कहते हैं कि मैं आशीषों की वर्षा भेजूंगा। The first one is the rain of righteousness. इसमें पहला है धार्मिकता की बारिश। Isaiah 45:8. यशायाह 45:8। Rain down you heavens from above. Let the skies pour down righteousness. हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Isaiah 32:15-16. यशायाह 32:15 और 16। The Spirit of God is going to be poured upon us from upon high. परमेश्वर का आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाएगा। Then righteousness will come upon us. और तब हमारे ऊपर धार्मिकता आएगी। And the Bible says in Hosea 10 and verse 12. होशे 10:12 में बाइबल कहती है, Sow for yourself righteousness. अपने लिए धर्म का बीज बो। It is time to seek the Lord ये समय है कि हम प्रभु को खोजें till He comes and rains righteousness on you. कि वो आकर धार्मिकता से आपके ऊपर में राज्य करें। My friend, this year seek for God's righteousness in your life and in your family. मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल अपने जीवन में और अपने परिवार में परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते चले जाएं। And then God's reign of righteousness will come upon you through the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता का राज्य जो है वो आपके ऊपर आएगा। Matthew 5:6, Jesus said, मत्ती 5:6 में यीशु ने कहा, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, for they shall be filled. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। And you should know, where there is no righteousness, there is no rain of blessing. और आपको ये जानना चाहिए, जहाँ पर धार्मिकता नहीं है वहाँ पर आशीषों की बारिश नहीं है। 1 Kings 8:35 and 36 says so. पहला राजा अध्याय 8:35 और 36 ये कहता है, Even today. यहाँ तक कि आज भी। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? Romans 4:3. रोमियो 4:3, Romans 3:22. रोमियो 3:22, Both the verses say, दोनों वचन कहते हैं, believing God for everything is righteousness. हर एक बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना ही धार्मिकता है। Yes, not complaining and saying, why have you done this, Lord? ये नहीं कहना है कि प्रभु आपने ये क्यों किया। When problems come, जब समस्याएं when आएगी, hunger comes, जब भूख आएगी, when accusation comes, जब दोष लगाया when जाएगा, betrayal comes, जब धोखा दिया when जाएगा, sickness comes, जब बीमारी आएगी, we will still say, हम फिर भी ये कहेंगे, my Jesus will make me live in this world. मेरे यीशु मुझे इस संसार में जीने देंगे। He has a plan for me. उसके पास मेरे लिए He योजना has है। purchased me with His blood. उसने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। He will fulfill all His will and turn my sorrow into joy. वो अपनी इच्छा पूरी करेंगे और मेरे दुख को आनंद में बदल देंगे। Believing God for everything, believing Jesus for everything brings you righteousness. हर एक बात के लिए यीशु पर विश्वास करने से ही आपको धार्मिकता मिलती है। And the Holy Spirit brings that righteousness in you. और पवित्र आत्मा वो धार्मिकता आप में लेकर आता है। There was a lady called Florence. एक महिला थी जिनका नाम है फ्लोरेंस। She was a lame lady. वो लंगड़ी व्यक्ति थी। She was walking with a stick and crutches. वो तो लकड़ी और बैसाखी लेकर चलती थी। One leg was dead. एक पैर तो मानो मर चुका था। She would pull that leg and walk. वो अपने पैर को ऐसे खींचते हुए चलती। One day the Lord told her, एक दिन प्रभु ने उससे कहा, my daughter, मेरी बेटी, go to the gospel house. उस गॉस्पल हाउस में जाना। Something like the prayer tower. वो कुछ प्रेयर टावर के जैसे ही था। There I will heal you. वहाँ पर मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। She said, उसने कहा, why should I go to the gospel house to get healed? चंगाई पाने के लिए मैं गॉस्पल हाउस में क्यों जाऊं? इस तरह से पूछा। First of all, I am lame, my leg is dead. सबसे पहले मैं तो लंगड़ी हूँ, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। Will I ever get healing? क्या मैं कभी कोई चंगाई पाऊंगी? But you are asking me to go there, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाऊं, dragging my leg in the street. सड़कों पर अपने पैर को इस तरह से खींचते हुए जाऊं। If you want to heal me here. अगर आपको मुझे चंगाई देनी है तो यहीं पर दीजिए। But then the Holy Spirit rose up within her लेकिन फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर उभर कर आया and said, और कहा, better learn to trust me and obey me. मुझ पर भरोसा करके मेरी आज्ञा मानना सीख लो। I want to rain my blessing upon you. मैं अपनी आशीषों की वर्षा तुम पर करना चाहता हूँ। Believe me. मुझ पर विश्वास करो। Believe me. मुझ पर विश्वास करो। Trust me. मुझ पर भरोसा रखो। And she began to cry and repent and
was sanctified through the Holy Spirit. और वो रोक कर पश्चाताप करने लगी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्ध हो गई। Many times we try to dictate to God. कई बार परमेश्वर से हम अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। We say, if you are God, give me this हम blessing. कहते हैं प्रभु अगर आप परमेश्वर है तो ये आशीष When दीजिए। problems come, जब समस्याएं आती we हैं say, where are you? हम कहते हैं आप कहाँ Where पर हैं? is your prophecy? आपकी भविष्यवाणी कहाँ है? Where is your calling? आपकी बुलाहट कहाँ है? No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, It's time to repent ये समय है कि पश्चाताप करें and bow down before और Jesus यीशु के सामने झुक जाएं and tremble before Him. और उसके सामने कांपें। One who has given His life for us उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है rose up from the grave. और वो कब्र में से जी He उठे, is alive वो जीवित है and has a plan for your और future. आपके भविष्य के लिए उसके पास योजना है। Whether it's good times or bad times, Jesus has a wonderful plan for you. चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, यीशु के पास आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। And she dragged her leg to the gospel house. और वो पैर ऐसे घिसते हुए गॉस्पेल हाउस में गई And the leader of the house for that meeting that day said, "Why have you come so early?" और उस हाउस के जो मीटिंग के जो लीडर थे उस दिन के लिए, उन्होंने कहा आप इतनी जल्दी यहाँ